ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ کے اندر کتنی مرتبہ ٹیکنالوجی عروج پر پہنچی، پھر تباہ ہوئی، پھر عروج پر پہنچی، تباہ ہوئی، اور اس کا ایک حصہ اور اس ٹیکنالوجی کے آثار آپ کے پیارے ملک پاکستان میں ملتے ہیں۔ جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، آپ نے تفریح کے لیے جانا ہو یا آپ نے کسی مقام پر جانا ہو، تو ایز اے ٹورزم کی بحالی کے لیے آپ نے پاکستان کے پنجاب کے شہر ساہیوال کے قریب ہڑپا کے مقام پر جانا ہے، اور سندھ میں لاڑکانہ کے قریب موہنجو داڑو والی سائٹ پر ضرور جانا ہے، کیونکہ یہاں پر دنیا کے سب سے قدیم ترین تہذیب انڈس ویلی سیولائزیشن کی باقیات ہیں۔ اور یہاں پر آج کی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہم اور آپ سب یوز کرتے ہیں، اس ماڈرن ٹیکنالوجی سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اس دور میں یوز ہوتی تھی، اور یہ کس طرح تباہ ہوئی اور یہ کیسے بنائی گئی، یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں ملیں گی۔ لیکن جب بھی آپ کا ٹورزم کرنے کا اتفاق ہو تو آپ یہاں پر جائیں، کیونکہ مصر کی تہذیب سے لے کر دنیا کی ہر تہذیب سے زیادہ پرانی آپ کی اپنی تہذیب ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی، لیکن ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے، ہسٹری کے سٹوڈنٹس کے لیے، اور خاص طور پر جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے چیز ہے کہ اس پر ریسرچ کریں، اپنی ریسرچ انٹرنیشنل اداروں کو بیچیں، پھر دیکھیے گا آپ کے لیے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں یہ لاسٹ سیولائزیشن جو یہاں پر ہے، اس میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی اور کیا ہوا۔ دیکھیں، آپ نے کبھی ایسا سوچا کہ آپ آنکھیں بند کریں اور آپ کا دل کرے ہزاروں سال پہلے ہم کسی زمانے میں پہنچ جائیں، تو آپ کو ہڑپا اور موہنجو داڑو والی سائٹ ضرور وزٹ کرنی ہوگی۔ یہ دنیا کی واحد تہذیب ہے جو پوری دنیا کے اندر سب سے پرانی جانی جاتی ہے۔ جتنی بھی آج تک تہذیبیں ہیں، مصر کی ہے یا کوئی اور ہے، ان سب کی لینگویجز، ان کے خفیہ کوڈ ڈی کوڈ ہو چکے ہیں اور ان کا پتہ چلایا جا چکا ہے لینگویج کا۔ لیکن پاکستان کے اندر انڈس سیولائزیشن کا آج تک کچھ بھی ڈی کوڈ نہیں ہو سکا، یعنی اس کی لینگویج کا نہیں سائنٹسٹ کو پتہ چل سکا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ جائیں، ہمارے بچے جائیں اور جا کر اس کو ڈسکور کریں۔ یہ اصل میں انڈس سیولائزیشن یہ بڑی پرانی ہے، اور تقریباً یاد رکھیے گا آج سے 7000 سال پہلے، یعنی یہاں پر ہمیں جو آثار ملتے ہیں وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان نے کپاس کی جو کاشت کی اور اس نے دھاگا بنا کر لباس بنانا سیکھا۔ کپاس کی جو کاشت اصل میں جس علاقے میں کی گئی وہ یہی سندھ کا موہنجو داڑو اور پنجاب کا ہڑپا کا علاقہ ہے۔ دھاگا بنانے کی مشین اور کپڑا بنانا ہزاروں سال پہلے یہیں سے شروع ہوا تھا۔ ایون کہ سوتی کپڑا جسے انگلش میں کاٹن کہتے ہیں، وہ اسی تہذیب کے لوگوں نے ایجاد کیا، اور انگلش زبان کا یہ لفظ کاٹن جو ہم اپنی گفتگو میں یوز کرتے ہیں، یہ اصل میں کاٹن کا جو ورڈ ہے یہ کاتنا سے نکلا ہے۔ اس زمانے کے لوگ کپڑا کاتتے تھے اور یہ کاتنا لفظ آگے چل کر کاٹن میں تبدیل ہوا۔ انسانوں کی جو ابتدا ہوتی ہے اس میں یہاں پر رہنے والے لوگوں کی جو ترقی ہے وہ تمام کی تمام ایڈوانس ٹیکنالوجی آپ کو یہاں سے آ کر ملتی ہے۔ اور لاسٹ انڈس سیولائزیشن، آپ ان لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ ایسا لگے گا آپ کو کہ آپ 2021، 22، 23، 2030 تک، یعنی جو مستقبل میں بھی ٹیکنالوجی یوز ہونی ہے وہ یہاں پر ہوتی رہی۔ آج کے ماڈرن دور سے بھی ماڈرن تھا یہاں کا دور۔ لاسٹ انڈس سیولائزیشن پاکستان، افغانستان اور بھارت کے تقریباً 10 لاکھ مربع کلومیٹر ایریا پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں تقریباً 1052 شہر تھے۔ اس تہذیب کا سب سے بڑا جو شہر ہے وہ موہنجو داڑو تھا، اور دوسرا بڑا شہر ہڑپا تھا، یعنی آپ سمجھیں جو کیپٹل تھا ان کا وہ موہنجو داڑو تھا جو سندھ کے اندر موجود ہے۔ یہ اصل میں 1200 ایکڑ تک موہنجو داڑو مشتمل ہے، لیکن صرف 650 ایکڑ کے قریب رقبے کی کھدائی ہو سکی، وہ بھی پراپرلی انہوں نے نہیں کی۔ یہ شہر اصل میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اتنا بڑا تھا کہ 2 دفعہ تباہ ہوا، لیکن عجیب و غریب صورتحال 2 مرتبہ تباہ ہونے کے بعد دوبارہ یہ تعمیر ہوا، اور اس کے اثرات آج تک ہمیں ملتے ہیں۔ اصل میں شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ 1856 میں جب انگریز یہاں پر آیا تو یہاں پر وہ ریلوے ٹریک بچھا رہے تھے،
तो यहाँ पर खुदाई करते हुए उनको ईंटें मिली और ये फायर बेक्ड ईंटें थी। आप हैरान होंगे, 8000 साल पुरानी। आप सोच सकते हैं किसी ईंट को आप यूज करें किसी भी रेलवे ट्रैक के लिए। इन्होंने काम ये किया कि मजदूरों ने जब इसको निकाला तो उन्होंने कहा कि ये ईंटें भी पहले कहीं होंगी बनी हुई। उन्होंने इसको निकाल कर रेलवे ट्रैक पर वो ईंटें लगाना शुरू कर दी, यानी उसी से पूरा ट्रैक उन्होंने काफी ज्यादा बना लिया। और जब उनके आसार कदीमा के लोगों को एक सर्वे करने वाली जो कंपनी थी जो असल में तमाम चीजों को देखती थी, उनके हेड को पता चला तो वो यहाँ पर पहुंचे। उसने कहा ये क्या मजाक है। उन्होंने निकाला तो पता चला कि 8000 साल में सोचे कितनी बारिशें, तूफान, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से ईंटें बनाई गई थी कि आज भी कारामत थी। तो तब से दुनिया को पता चला कि यहाँ पर एक लॉस्ट सिविलाइजेशन भी है। असल में पंजाब का जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंध का, इसके दरमियान तकरीबन 686 किलोमीटर का फासला है, लेकिन हजारों साल पुराना होने के बावजूद हैरानकुन तौर पर इनको इस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया, डिजाइन किया गया कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी ऐसा ना कर पाए। आप मोहनजोदाड़ो में देखें तो आपको एडवांस लेवल का, बिल्कुल मॉडर्न लेवल के पुख्ता ईंटों से बने स्विमिंग पूल मिलेगा। आपको अलग अलग कमरे मिलेंगे। इस स्विमिंग पूल के साथ आपको सड़क पर डालने वाली लुक भी नजर आती है, यानी चारकोल या हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल भी इसमें किया गया। और शहर में आपको पक्की फायर बेक ईंटों के दो मंजिला मकानात वो भी नजर आएंगे। और इस तरह तरतीब के साथ बने हैं कि आज के दौर के अंदर कोई भी आप जदीद हाउसिंग सोसाइटी जो अमेरिका में बनी हो, पाकिस्तान वाली तो छोड़ दीजिए, जो अमेरिका में या कहीं और बनी हो, उस लेवल की हाउसिंग सोसाइटी को जिस तरह डिजाइन किया गया एक एक कॉर्नर देकर, उससे भी ज्यादा जदीद डिजाइन उस वक्त था। और अब आप सोच लें कि क्या आप सोच सकते हैं कि उस दौर के अंदर कोई ड्रेन सिस्टम इस तरह का हो जो आज का है, या इस तरह का आपको फ्लश करने वाला वो तमाम सूरत हाल, आपका जितना फुजला ये वो है, वो एक प्रॉपर तरीके से आगे जाता है। उस तमाम के आसार यहाँ पर मिलते हैं। असल में जो आसार कदीमा के लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर जमीन के नीचे असल खुदाई करने वाली है कि पूरे का पूरा शहर दफन है, लेकिन हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं देती, खासतौर पर सिंध की हुकूमत। आप हैरान होंगे कि उन्होंने रोड जो बनाई थी उस दौर में एडवांस टेक्नोलॉजी से, वो बिल्कुल 30 फुट चौड़ी रोड थी, पक्की रोड थी, जिसके ऊपर आज के दौर की जिस तरह टेक्नोलॉजी गाड़ियां और चलती हैं, उन्होंने उस मकसद के लिए बनाई थी। यानी पक्की रोड आप बनाते हैं कि जो गाड़ियों का बोझ पूरी तरीके से यूज, उस वक्त जो भी चीजें होती थी वो आज के दौर के मुताबिक आप देखें तो आपको नजर आती है। यानी उन्होंने जो रोड्स बनाई थी वो आज की मॉडर्न गाड़ियां जो है वो उसके इस्तेमाल के लिए बनाई जाती हैं। देखिए ये जो 30 फीट की गलियां थी, पक्की थी, 90 के जाविये पर एंगल एक दूसरे को क्रॉस करती थी, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर। बड़ी गलियों से निकलने वाली छोटी गलियां 10 फीट चौड़ी थी और इन गलियों को इस अंदाज में बनाया गया था कि इनमें आंधी का जोर टूट जाए। यानी मकानात अमूमन 2 मंजिला उस वक्त हुआ करते थे, जिनकी ऊपर वाली मंजिल के कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी। यहाँ पर जो मकानात थे वो इस तरह डिजाइन किए गए थे कि उनके अंदर प्रॉपर बाथरूम होते थे और फ्लैश सिस्टम, लेटरीन के इस्तेमाल से तमाम तर लोग वाकिफ थे। जबकि कहा यह जाता है आज से चंद सौ साल पहले की बात है, जबकि उस दौर में प्रॉपर बाथ होते थे, गुसल खाने होते थे और सीवरेज यानी गंदे पानी का निकालने का जो सिस्टम अंडरग्राउंड था वो सारे का सारा थ्रू टेक्नोलॉजी यहाँ पर उसके आसार मिले हैं। आज के दौर का जदीद इंसान भी अंडरग्राउंड वाटर सैनिटेशन सिस्टम अब आकर वाकिफ हुआ है, और वो भी जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से। तो सोचिए आज से 8000 साल पहले जब अंडरग्राउंड आपका गंद और सब निकालने वाला सिस्टम था तो उस दौर में क्या सूरत हाल होगी। अंडरग्राउंड उन्होंने नालियां रखी हुई थी कि आपका ड्रेन सिस्टम पूरे का पूरा चले, उस वक्त तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तरह आज मेन होल है, बिल्कुल गटर के ढकने मिलते हैं उस दौर के हवाले से, जिसमें यानी आप सोच रहे सफाई शहर की सबसे बेहतरीन उनका जो अमला करता था वो प्रॉपर थ्रू टेक्नोलॉजी करता था। घर की बैरूनी दीवार के साथ एक पक्की ईंटों का गटर बना होता था ताकि घर का फालतू पानी गली में ना जाए बल्कि वहां पर हो। चौकों चौराहों में एक छोटा सा कमरा बना होता था चौकीदार के लिए। यानी बिल्कुल समझ लीजिए एक प्रैक्टिकल, आज आप किसी भी सोसाइटी के अंदर जो देखते हैं वो इस तरह का पूरा बंदोबस्त था। देखिए कि उस वक्त उन्होंने जो वेल्स बनाए थे, कुएं थे,
वो तकरीबन उस वक्त 40,000 के करीब लोग यहाँ पर रहते थे और 40,000 लोगों के लिए 700 कुएं यानी एवरेज 57 लोगों की जरूरत के लिए एक कुआं, इतनी हाई परसेंटेज के लिए आज तक कभी जिंदगी में आपको लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क इवन के जदीद जगहों पर भी ऐसी जबरदस्त तकनीक और ऐसे जबरदस्त निजाम दिखाई नहीं देता। तो जमीन से नीचे जेवरात मिले हैं, उससे पता ये चलता है कि उस वक्त के लोग बड़ा मॉडर्न फैशन किया करते थे। वो तमाम आज के जो लेटेस्ट कॉस्मेटिक्स हैं उनसे भी वाकिफ थे। तो आप सोच ले 8,000 साल पहले आज के जितने भी हिस्टोरियन हैं वो लिखते हैं जो आसार कदीमा के लोग हैं, इन्होंने जब इस टेक्नोलॉजी को पता चलाया कि क्या उस वक्त दौर की टेक्नोलॉजी थी, तो खुदाई के दौरान इन माहिरीन को ऐसे गोदाम मिले जिनमें काफ़ी अरसे तक आप फसलों को महफूज कर सकते थे, मौसम का कोई असर नहीं होता था इन पर। और गोदाम असल में दरियाओं के किनारे पर बनाए जाते थे जिसमें हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती थी और स्टोर की गई फसलों को ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते थे। मगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के लोगों के हजारों साल पुराने बनाए गए इन गोदामों पर मौसमी असरात का बिल्कुल असर सिफर हो जाता था। इसी टेक्नोलॉजी का उनको पता चला है जो फसलों की प्रोसेसिंग करती थी, और इवन कि उनका जो लाइफस्टाइल था वो हैरानकुन तौर पर था कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते थे चीज़ों को, यानी दरियाई सफ़र से भी वाकिफ़ थे। और उनके बहरी जहाज़ के भी बहुत सारे मामला तो उनकी टेक्निक्स मिली है कि बहरी जहाज़ वो यूज़ करते थे। हज़ारों साल पहले ये लोग अपनी तैयार की हुई फसलें एक जगह से दूसरी जगह लेकर, कपड़ा, समुद्री तमाम चीज़ें आज से यानी सेंट्रल एशिया तक भी उन्होंने लेकर जाना होता तो वो लेकर जाते थे। अभी तक इनको नहीं पता चल सका कि उस दौर के लोगों का मजहब क्या था, लेकिन उनको बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं, जो कब्रें मिली हैं जिनके साथ खवातीन दफन और बड़े डिसिप्लिन अंदाज में, लेकिन उन खवातीन के ऊपर यानी जो लाशें हैं उनमें इंजरीज की कुछ अलामत मिली है, यानी ऐसा लगता है कि वो खावंद के साथ दफन हो जाती थी, सती हो जाती थी, कुछ इस तरह के भी आसार मिले हैं। कहा जाता था कि आर्यंस ने आकर इन लोगों को आबाद किया, लेकिन उनके आने से पहले ही यहाँ पर एडवांस लेवल के शहर आबाद थे। यहाँ पर जो उनको स्टेम्स मिली हैं, यहाँ पर जो उनको चीज़ें मिली हैं, वो कहते हैं कि आज की मॉडर्न इंग्रेड जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू ये बनाई जा सकती थी। अब उनको डीकोड नहीं उनसे किया जा रहा कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने तमाम तहजीबों के अब तक जितने भी मिले सबको डीकोड कर लिया, उनके टेक्स्ट, उनकी तस्वीर, लेकिन इनको अभी तक कोई भी डीकोड नहीं कर सका। उस वक्त चीज़ें कुछ पता चली हैं कि जंगलात उन्होंने सारे काट दिए थे, यानी जंगलात इस सूरत में कटते हैं जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं, आप फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, जिस तरह आज पूरी दुनिया में हो रहा है। जंगलात काट कर उन्होंने फर्नीचर के तौर पर सारे के सारे जंगलात कटने की वजह से मौसम ख़राब हो गए थे। एडवांस टेक्नोलॉजी जो आज भी पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के नाम के ऊपर काम चल रहा है, तो इस पूरे खेल में उस वक्त इनको आसार मिलते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कहत साली हुई, बारिशें होना बंद हो गई और एडवांस सिविलाइजेशन पूरी तरह सफाई से मिट गई। आज भी देख लें टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, साथ साथ आप वही काम करें, आप दरख्त काटते जा रहे हैं, पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। आसार मिले हैं कि वहाँ पर कॉपर, लीड और तमाम चीज़ें वो बहुत कम टाइम के अंदर जाते थे, इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। मेटल, सिल्वर, ये तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना वो जानते थे। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम यहाँ से जाकर देखें ये क्या टेक्नोलॉजी थी, स्विमिंग पूल कैसे थे, किस तरह का ड्रेन सिस्टम था, उस वक्त रोड के ऊपर गाड़ियाँ कौन सी चलती थी, कैसे टेक्नोलॉजी बर्बाद हुई, क्लाइमेट का क्या मसला, ये तमाम चीज़ें। और अगर आप रिसर्च नहीं भी करना चाहते तो आपको विजिट करना पड़ेगा, आप देखे जाकर वहाँ पर क्या था, क्योंकि हम मिस्र शायद जाना मुश्किल हो हमारे, लेकिन अपने मुल्क में जा सकते हैं। उस वक्त की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखें, वो क्या चीज़ थी, कैसे तबाह हुई। हमारे लिए एक अहम तरीन सबक है कि अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो कामयाबी होगी, क्योंकि हम दुनिया को यहाँ पर बता सकते हैं कि हमने चीज़ों को डीकोड किया है।